زبانوں کو معطر فرمائیے ذکر درود پاک سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ شرفہ للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین واطاعتہ نجات للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام وتحیاتہ الکرام علی اشرف النبیین والخاتم المرسلین سیدنا و مولانا حبیبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم نادی علی مظہر العجائب تجد ہون لکا فی النوائب کل غم و غم سینجلی بے علی مل کے باواز بلند صلوات پڑھئے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا یہاں آنا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مجلس کے بانیان میرے بھائی جناب فروخ شمسی صاحب، ان کے دیگر عزیزہ اقربا، ان کے بھائی، سارے خانوادے کی یہ نوکری اپنی بارگاہ مقدس میں عبادت میں شمار فرما۔ میرا مالک اس مجلس کا اجر و ثواب ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ میرا مالک ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جتنے عزاداران امیر المومنین آئے بیٹھے ہیں، میرا مالک ان میں سے کوئی خالی دامن واپس نہ جائے۔ تجھے واسطہ تیری آخری حجت کا میرا مولا، جو بیمار ہے اسے شفا یاب فرما، بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، پریشان حال ہے ذکر کا صدقہ پریشانیاں دور فرما۔ سب دعاؤں کی ایک دعا، جس کے دل میں جتنی تڑپ، جتنی ضرورت، جتنی حسرت ہے، بندہ اتنی حسرت سے آمین ضرور کہے۔ میرا مالک ضرورت زمانہ حجت دوران امام عصر کا جلد از جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے صلوات ایک پڑھیے مگر مل کے بواز بلند پڑھیے۔ اللہم سب سے پہلے شکر گزار ہوں بانیان مجلس کا کہ جنہوں نے مجھ حقیر کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ مومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس ممبر کی وسادت سے ان آل محمد سے خیرات مانگ سکوں کہ جن آل محمد کی خیرات نہ ہو تو نبیوں کو منصب نبوت نہیں ملتا۔ یعنی ان آل محمد سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں جو خیرات دیتے ہی اس انداز سے ہیں کہ اگر ان کے دروازے پہ بیداد آ جائے اسے مقداد بنا دیتے ہیں، بیزار آ جائے اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں، اور اگر فارس کا کوئی غلام ان کی چوکھڑ پہ جھک جائے تو اسے اہل بیت کا فرد بنا لیتے ہیں۔ اپنی نبوت و امامت کا صدقہ بننے والے آدم کے سجدے کے منکر عبادت گزار کو اپنی دربار سے روندہ درگاہ کر کے شیطان بنا دیتے ہیں، اپنی چوکھڑ پہ ادب کے ساتھ جھک جانے والے کو سلمان بنا لیتے ہیں۔ اور اگر حبش سے آیا ہوا کوئی معمولی غلام ان کے در دولت پہ خلوص نیت کے ساتھ جھک جائے تو پھر اسے اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ بلال اس قابل ہو جاتا ہے کہ سورج کی تنابیں کھینچ کے وقت کی نبضیں روک لیتا ہے۔ جی بڑی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بڑے لطیف، زیرک اور نفیس سماعتیں میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ میں 4 مصروں سے اپنے حصے کی نوکری کا آغاز کرنے لگا ہوں، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان، ماہ رمضان کو ڈھیر ساری نسبتیں حاصل ہیں آل محمد کے ساتھ، ٹھیک ہے جناب؟ تو میں کوشش کرنے لگا ہوں امام حسن کی بارگاہ میں 1-2 قطعات پیش کر کے پھر امیر المومنین کی جانب بھی آؤں۔ یہ ہے چلتی ہوئی دنیا میں عدن کی صورت۔ بڑی مہربانی، اتنے مشکل مصرے پہ اتنے سارے لوگوں کا بول پڑنا آپ کی کیا بات ہے؟ جس کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی میں آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عدن کہتے ہیں جنت کو، ٹھیک ہے جناب؟ یہ ہے چلتی ہوئی دنیا میں عدن کی صورت، یہ ہے چلتی ہوئی دنیا میں عدن کی صورت، اور اسی میں ہے محمد کے چلن کی صورت۔ نہیں تھوڑے بندے بولے ہیں، اگو کی ہو سیالکوٹ ہو، ذکر امام حسن ہو، بندے نہ بولے میں مانتے ہی نہیں۔ یہ ہے چلتی ہوئی دنیا میں عدن کی صورت، یہ ہے چلتی ہوئی دنیا میں عدن کی صورت، اور اسی میں ہے محمد کے چلن کی صورت، اور اسی میں ہے محمد کے چلن کی صورت، اور اسی میں ہے محمد کے چلن کی صورت۔ بندہ کہے میں ذکر امام حسن میں بیٹھا ہوں، امام حسن کی عظمت پہ بولنے کا دل نہیں کیا، شبیع الحسن کاظمی اپنا قلم توڑ کے چلا جائے۔ یہ ہے چلتی
हुई दुनिया में अदन की सूरत, और इसी में है मोहम्मद के चलन की सूरत। 15वें रोज को रमजान के देखा हमने क्या, हुस्न खालिक ही उतर आया हसन की सूरत। अजमत इमाम हसन यार, अजमत इमाम हसन। हाथ उठा के हर बंदा हैदरी जी, बड़ी मेहरबानी। आपकी क्या बात है जी, जिक्र सुनने वालों की क्या बात है। 4 मिसरे और पढ़े जनाब। अली के घर में मुकम्मल नबी की दीद है वो। नहीं, इस बंदे को समझ आइए यार। अली के घर में मुकम्मल नबी की दीद है वो। अगला मिसरा मेरा इत्तेकाद है, मेरा अकीदा है, मेरा नजरिया है, मेरी सोच है। जिस बंदे को बारे में आए उगो की वाले वो बोले, जिस बंदे के बारे में ना आए उसका अपना मुकद्दर, शबी काज़मी का अपना नसीब। अली के घर में मुकम्मल नबी की दीद है वो, जहां में इसका जो मुनकर है बस पलीद है वो। सदके क्या बात है, उगो की क्या बात है, आपके उठे हुए हाथ की क्या बात है। इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। मुकम्मल नबी की दीद है वो, अली के घर में मुकम्मल नबी की दीद है वो, जहां में इसका जो मुनकर है बस पलीद है वो। इस छोटे बच्चे से लेके वो मेरे आखिरी बुजुर्ग तक कोई बंदा यहाँ ऐसा है ही नहीं जिस बंदे को ये पता न हो कि हसन बड़ा भाई था, हुसैन छोटा भाई था, हसन बड़ा भाई, हुसैन छोटा भाई। जिस बंदे को पता है वो बंदा सर उठाए। मैं चौथा मिसरा तेरी बारगाह में पेश करने लगा हूँ, फैसला आज होगा, इसी इमाम बारगाह में होगा, इसी वक्त होगा। अली के घर में मुकम्मल नबी की दीद है वो, जहां में इसका जो मुनकर है बस पलीद है वो। हमारी सोच नहीं दीन की हकीकत है क्या, कि जो हसन से लड़ा हो बड़ा यजीद है वो। अजमत इमाम हसन यार, अजमत इमाम हसन जी, बड़ी मेहरबानी। कि जो हसन से लड़ा हो बड़ा यजीद है वो। सहा कहते हैं सहावत को। सहा जो शक्ल बशर में उतर रही है तो फिर मेरे मौला गवाएं कि मैं दिल से मुतमईन खड़ा हूं। इतनी खूबसूरत आपकी समातें हैं, इतने लतीफ आपकी अज़हान हैं, मैं बिल्कुल मुतमईन खड़ा हूं और आपकी मोहब्बत में पढ़ता जा रहा हूं। सहा जो शक्ल बशर में उतर रही है तो फिर मिंबर पे किसी का शेर अपने नाम से पढ़ना हराम समझता हूँ। आले मोहम्मद ने जो मुझे अता किया है उस पे पूरा मुतमईन खड़ा हूँ। सहा जो शक्ल बशर में उतर रही है तो फिर। अच्छा, ये जो हम ज़ाकिरीन मेज पे हाथ मारते हैं, मजमे को मुहातिब करते हैं, इन चीजों का इस्तेमाल करके अगर जाकिर दाद ले, इसे कहते हैं उसकी खिताबत का कमाल। ऐसे ही जनाब, आपने माओं की झोलियों से मजलिस सुनी है, कदीमी अज़ादार मेरे सामने तशरीफ फरमा है। उगो की वालों, सियालकोट वालों, इन चीजों का इस्तेमाल किए बगैर अगर जाकिर दाद दे तो इसे कहते हैं समात का कमाल। मैं अगले मिसरे पे देखने लगा हूं, आप समात की किस सिदरा पे बैठ के जिक्र इमाम हसन सुनते हैं। सहा जो शक्ल बशर में उतर रही है तो फिर। हसन शाह जी, जिस बंदे को इमाम हसन से कुछ मिला है, सहा जो शक्ल बशर में उतर रही है तो फिर हसन इमाम के कामल असूल जैसी है। जी, बड़ी मेहरबानी सैयद, बहुत शुक्रिया। सहा जो शक्ल बशर में उतर रही है तो फिर हसन इमाम के कामिल असूल जैसी है। हसन इमाम के कामिल असूल जैसी है। हसन इमाम के कामिल असूल जैसी है। बड़ी मेहरबानी। जिस बंदे को पता इमाम हसन की खसूसियात क्या थी, जिस बंदे को पता इमाम हसन का मिजाज क्या था, जिस बंदे को पता इमाम हसन की फितरत क्या थी, वो बंदा सर उठाए। सहा जो शक्ल बशर में उतर रही है तो फिर हसन इमाम के कामिल असूल जैसी है। हसास चाल, नफासत मिजाज धीमा सा। अल्लाह जाने मैं कहां खड़ा हूं यार, क्या बात है। जिंदाबाद उग्गो की वालों, आपके मयार की क्या बात है। शक्ल बशर में उतर रही है तो फिर हसन इमाम के कामिल असूल जैसी है। हसन इमाम के कामिल असूल जैसी है। हसास चाल, नफासत मिजाज धीमा सा। हसन की सारी तबीयत रसूल जैसी है। अज़मत है इमाम हसन जी, क्या बात है, आपकी क्या बात है जी। मालिक आपका उठा हुआ हाथ सलामत रखे। या जी, बड़े मेहरबान।
मैं लाख दफा पढ़ूं जनाब। सहा जो शक्ल बशर में उतर रही है तो फिर हसन इमाम के कामिल असूल जैसी है, और हसास चाल नफासत मिजाज धीमा सा, हसन की सारी तबीयत रसूल जैसी है। चलें, बड़ी मेहरबानी, मैं बस आखिरी 4 मिसरे पढ़ के हाथ उठा के हर बंदा पीछे वाले हैदरी। बड़ी मेहरबानी जी, मालिक आपको सलामत रखें। ये जो भी दे दे समझ लो कमाल देता है। नहीं यार, झोलियां फैलाओ। जिस बंदे को इमाम हसन से कुछ मिले या मुस्तकबिल में इमाम हसन से चाहिए, वो बंदा अगला मिसरा अपनी हसरत दिल में रख के बोले। उसे अगले साल इस मजलिस से पहले, बल्कि 15 रमजान नजूल इमाम हसन से पहले हसरत पूरी ना हो, फिर मैं इमाम हुसैन का जाकिर नहीं। ये जो भी दे दे समझ लो कमाल देता है। अली का फातिमा जहरा का लाल देता है। आहा, जिंदाबाद, क्या बात है जी। मालिक आपको सलामत रखें। बहुत शुक्रिया हसन शाह जी। ये जो भी दे दे समझ लो कमाल देता है। ये जो भी दे दे समझ लो कमाल देता है। अली का फातिमा जहरा का लाल देता है। हजरत आदम से लेके हजरत खातिम तक, यानी पहले इंसान से लेके, पहले आदमी से लेके पैगंबर आजम तक, पहले नबी से लेके सरदारुल अंबिया आखिरी नबी तक, आखिरी नबी से आखिरी इंसान की आखिरी सांस की आखिरी हिचकी तक, हर इंसान को अपने जहन में रखना है। यह काम सवाई इमाम हसन के किसी और ने किया हो तो फिर मेरा भाई कोई दाद नहीं। अगर लगे ये काम इमाम हसन के अलावा किसी से हुआ ही नहीं, फिर तू बोलने में बुहल करे। तू जाने, मजलिस जाने, मेरा मौला हसन जाने। ये जो भी दे दे समझ लो कमाल देता है। अली का फातिमा जहरा का लाल देता है। खुदा के सारे हलाइक में बस हसन मौला कलम की नोक से जंगों को टाल देता है। भाई क्या बात है, जिंदाबाद उग्गो की। हाथ उठा के हर बंदा पिछले मोहल्ले वाले हैदरी जी। बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको सलाम जी। आप जिए, ये जिक्र जिए। बाजार से गुजर रहे थे इमाम हसन, कोई तबीयत लगी है जनाब? बाजार से गुजर रहे थे इमाम हसन। अच्छा, एक जुमला कहने को मेरा दिल बड़ा है। मैंने 15 रमजान एक जगह पढ़ा और ऐसा उसका लुत्फ आया, उसके बाद आया नहीं। लेकिन जो जनाब का मयार समात है, आप मुझसे भी ज्यादा बारीक लोग हैं। बाजार से गुजर रहे थे इमाम हसन, किसी के बेटे ने शरारत कर दी। जिसे किसी समझ आ गया यार, किसी के बेटे ने शरारत कर दी। हसन को जलाल आ गया। जुमला बदल के कहूं, किसी के बेटे ने शरारत कर दी। पंजतन की गैरत की सुर्खी सिमट के हसन के चेहरे पे नमूदार हो गई। क्या बात है, जिंदाबाद, आपकी क्या बात है। उसकी जानिब देखा, फरमाया ओ गुलामजादे। पता नहीं गोकी वाले क्या सुन रहे हैं, शबीउल हसन काज़मी क्या पढ़ रहा है। फरमाया ओ गुलामजादे। गुलामजादे का लफ्ज आया, भागता हुआ अपने बाप के दरबार में गया। हालत क्या है? किताब वाला लिखता है, जिस्म में कप कपी तारी, जुबान तालू के साथ लगी हुई है, चेहरे का रंग जर्द हुआ है। इमाम हसन से ये बात सुनने के बाद दरबार में पहुंच के इसके बाप ने ये हालत देखी। अपने तख्त से उठा, फिर बैठा, फिर उठा, फिर बैठा, फिर उठा। इसकी जानिब देख के फरमाते हैं, परेशान क्यों है, जिस्म काम क्यों रहा है, तुझे मसला क्या है? दौलत हमारे पास है, ज़र हमारे पास है, माल हमारे पास है, फौज हमारे पास है, हथियार हमारे पास है, तलवार हमारे पास है, रहवार हमारे पास है, कलम हमारे पास है, कलम बेचने वाले हमारे पास हैं, जमीर बेचने वाले हमारे पास हैं, तहरीर बेचने वाले हमारे पास हैं, जुबान बेचने वाले हमारे पास हैं, तकरीर बेचने वाले हमारे पास हैं। तू परेशान क्यों है? उसने कहा, यही तो परेशानी है, सब हमारे पास है मगर हक हसन के पास है। अजमत है इमाम हसन यार, अजमत है इमाम हसन जी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहते सब हमारे पास है, लेकिन क्या करूं, हक हसन के पास है। उसने कहा, हुआ क्या, माजरा तो बता। कहता मैं बाजार से गुजर रहा था, यूं ही हसन से एक बात की।
हसन ने भरे हुए मजमे में मुझे गुलाम का बेटा कह दिया। बाबा आपको अपना गुलाम कह दिया। कहते अच्छा सच्ची मुच्ची बता, हसन ने मुझे अपना गुलाम कहा है? सदके मुझे पढ़ने का लुत्फ आ रहा है जनाब। हसन ने अपना गुलाम कहा है? जी बिल्कुल। उसने कहा अच्छा एक काम कर, कागज ले जा, कलम ले जा, दवात ले जा। ये तो बेनियाजी की ना की बलन। कागज ले जा, कलम ले जा, दवात ले जा। उसने कहा बाबा करना क्या है? कहते लिखवा के ले आ कि हम हसन के गुलाम हैं। बाबा मकसद क्या है? कहते तू लिखवा के लाएगा, मैं अपने कफन में रखूंगा। कफन में जब होगा, पहली रात कब्र में आएगी, फरिश्ते कब्र में आएंगे, सवाल करने लगेंगे, हसन की लिखी हुई तहरीर देखेंगे, सोचेंगे ये हसन का गुलाम है, इससे सवाल करना नहीं, इसे यूं ही बख्श देना है, इससे सवाल करना नहीं, इसे यूं ही बख्श देना है। बंदे समझते हैं वो कागज कलम दवात ले गया, हसन से लिखवा के ले आया और सच्ची मुच्ची तारीख कहती है लिखवा के ले आया, अपने कफन में ले गया। उग्गो की वालों, सियालकोट वालों, गिरदो नवा वालों, अगर हसन ने लिख के दे दिया और वो अपने कफन में ले गया था तो फिर तो वो बख्शा गया। नहीं, मैं समझा नहीं सका। मैंने गुजारिश ये की है कि अगर हसन ने लिख दिया था, वो कफन में रख के ले गया था, तो फिर वो तो बख्शा गया। आइए जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आली जनाब इज्जत माफ, बहरुल मसाइब, मुल्क पाकिस्तान की नामवर शख्सियत, आपकी पसंदीदा तरीन हस्ती जनाब इमरान हैदर नकवी साहब अफकंग रौनक अफरोज मजलिस हो चुके हैं। इंशाल्लाह मुफस्सल हिताब फरमाएंगे। भाईजान मैं आपसे कबल चंद गुजारिशात, तवज्जो है मेरी जानिब जी? अच्छा, उसने कहा अगर वो कफन में ले गया फिर तो वो बख्शा गया ना। उग्गो की वालों, आपके अकीदे का पता ही नहीं, मैं अपना अकीदा पेश करने लगा हूं। भाई इमरान जी जिसको बारह खाए वो बोले, जिसके बारे की बात ना हो उसका अपना मुकद्दर, शबी काज़मी का अपना नसीब। बेटा कहते बाबा कागज कलम दवात ले जाऊं, हसन से लिखवा के ले आऊं, आप कफन में रखेंगे, फरिश्ते बख्श देंगे? कहते हाँ। कहते वाह बाबा, लिखवा के मैं ले आऊं, कफन में तू ले जाए? आहा, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। लिखवा के मैं ले आऊं, कफन में तू ले जाए? भाई इमरान जी, उसने कागज कलम दवात लिया, बाजार में चला इमाम हसन के पीछे। किताब वाला लिखते ये इमाम हसन के पीछे बाजार पहुंचा। इमाम हसन बाजार से निकले, ये चलता चलता मस्जिद आया, इमाम हसन ने नमाज शुरू की। ये चलता चलता इमाम हसन ने नमाज खत्म करके बाहर निकले, ये इमाम हसन के पीछे पीछे। इमाम हसन घर के दरवाजे पे पहुंचे, ये इमाम हसन के पीछे पीछे। इमाम हसन घर के अंदर, ये घर के दरवाजे पे। इमाम हसन बाहर निकले, ये फिर इमाम हसन के पीछे पीछे। चलते 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 नाना रसूल के रोजे पे आ गए इमाम हसन। कब्र रसूल पे सलाम किया, बाद सलाम ये कलाम किया, इसकी जानिब देखा, देख के फरमाते हाँ क्यों आया है, हाँ क्यों आया है? कहता मौला कागज लाया हूँ, कलम लाया हूँ, दवात लाया हूँ, मुझे लिख के दे दीजिए, हम आपके गुलाम हैं, लिख के दे दीजिए, हम आपके गुलाम हैं। हसन मुस्कुराए, इसकी जानिब देखा, कब्र रसूल पे देखा, फरमाया नाना कब्र से बाहर आके देख, जो मेरे बाप को हक का वली नहीं माना। ना 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 ना। अब चौथे मिसरे पे फैसला आपने करना है, वाकया तेरे बच्चों को भी याद। भाई इमरान जी मैं नया नतीजा दे के जाऊं, फिर दुआ का तो मैं तालिब बनता हूं ना। इमाम हसन ने कब्र रसूल की जानिब देखा, फिर इसकी जानिब देखा, फरमाते हैं नाना कब्र से बाहर आ, जो मेरे बाप को हक का वली नहीं माना, वो मुझसे हुल्द की जागीर लेने आया है। जिन्हें न थी तेरी तहरीर की जरूरत कल, वो तेरे पिसर से तहरीर लेने आया। अज़मत है इमाम हसन जी, बड़ी मेहरबानी, आपकी दुआ मिल गई सरकार जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मालिक आपको सलामत। आपके क्या जी, मैं लाख दफा पढ़ूं। फरमाते हैं जो मेरे बाप को हक का वली नहीं माना, वो मुझसे खुल्द की जागीर लेने आया है। और जिन्हें न थी तेरी तहरीर की जरूरत कल, वो तेरे पिसर से तहरीर लेने आया है जी, बड़ी मेहरबानी। मालिक आपको सलामत रखें। एक मनकबत इमाम हसन पे है, इजाजत जनाब की। जहान सारा जहां में दुहाई देता है,
भाई इमरान जी, बंदे की एक मार्फत होती है ना, मेरे मौला गवाएं, इनके मेयार समाज की क्या बात है। मेरे मार्फत की तार मिल गई है। मैं इमाम हसन की बारगाह में अपनी हसरतें रख के मिसरा पढ़ने लगा हूं। जहान सारा जहां में दुहाई देता है, क्या हसन का प्यार गमों से रिहाई देता है। भाई क्या बात है, जिंदाबाद। आपके मेयार समाज की क्या बात है। जहान सारा जहां में दुहाई देता है, जहान सारा जहां में दुहाई देता है, हसन का प्यार गमों से रिहाई देता है। हसन की नुत्क में किरदार गुफ्त लफ्जों में, हसन की नुत्क में किरदार गुफ्त लफ्जों में रसूल पाक का लहजा सुनाई देता है। अजमत इमाम हसन यार, अजमत इमाम हसन। रसूल पाक का लहजा सुनाई देता है। हसन को देख के, हसन को देख के सहने अली में सब बोले। नहीं, चले मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। मस्जिद नबवी थी, सहाबा का गिरोह मस्जिद से निकल रहा था। किताब वाला लिखते हैं हजरत अबू बकर आगे बढ़े, आगे बढ़ के हसन के कंधों पे हाथ रखा। हसन के कंधों पे सिर्फ हाथ नहीं रखा बल्कि बिला तशबीह यूं हसन को उठाया, उठा के सीने से लगाया। हजरत उमर करीब आए, हजरत अबू बकर के कंधे पे हाथ रखा, फरमाया या अबू बकर आपने क्या किया, आपने हसन को उठाया हुआ है, आपने क्या किया। जुमला अजमत इमाम हसन का जिसे समझ आ गया वो ना बोला मेरा कलम दुखी हो जाएगा। इमाम हसन को उठाया हुआ है, उसने कहा नहीं मैंने हसन को तो नहीं, मैंने मोहम्मद को उठाया हुआ है। ओहो भाई क्या बात है, अजमत हसन सुनने वालों की क्या बात। जहान सारा जहां में दुहाई देता है। भाई इमरान जी मैंने दिखाने लगा, देता है हसन का प्यार गमों से रिहाई देता है। हसन की नुत्क में किरदार गुफ्त लफ्जों में रसूल पाक का लहजा सुनाई देता है। हसन को देख के सहने अली में सब बोले, जमीन पे फिर से मोहम्मद दिखाई देता है। आहा अजमत इमाम हसन यार, अजमत इमाम जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जमीन पे फिर से मोहम्मद दिखाई देता है। और बना के बुजुर्ग फरमाया करते थे कि अगर बात में जोर होना तो बात जोर से करने की जरूरत नहीं। भाई इमरान जी मैं इतना कॉन्फिडेंस विच खलोते हैं, अगली गल ना जोर तक न, जमीन पे फिर से मोहम्मद दिखाई देता है। बना के खुल्द के घर, अल्लाह जाने कौन सुने कौन समझे कौन जाने। बना के खुल्द के घर बांटता है दुनिया में। सदके क्या बात है, क्या बात है यार, इन जिंदाबाद जाए। बना के खुल्द के घर कौन, इमाम हसन नहीं, बना के खुल्द के घर बांटता है दुनिया में। हसन जिसे भी जहां में गदाई देता है। भाई अजमत है इमाम हसन यार। हसन जिसे भी जहां में गदाई देता है, हसन जिसे भी जहां में गदाई देता है, हसन जिसे भी जहां में गदाई देता है। कहा हसन ने बनाकर ये मर्द को औरत। कहा हसन ने बनाकर ये मर्द को औरत, तू रश में मर्दों के अब क्यों दिखाई देता। जिसे समझ आ गई है यार, क्या बात है उगो की। तू रश में मर्दों के अब क्यों दिखाई देता है, तू रश में मर्दों के अब क्यों दिखाई देता है। ये अपने भाई के, अच्छा कितने बंदे हैं जो हुसैन के मातमी बैठे हैं, एक दफा हाथ बुलंद करें जी। हुसैन सारे मातमी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, जाकिर हुसैन भी हैं। इन्होंने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया, फरमाया सारे हुसैन के मातमी हैं। भाई इमरान जी आप ये मातमी ना बोले तो मेरा दिल दुखी हो जाएगा और मैं आपसे शिकायत करूंगा। आपने गारंटी ली है इन मातमियों की। ये अपने भाई के कहा हसन ने बनाकर ये मर्द को औरत, तू रश में मर्दों को अब क्यों दिखाई देता है, तू रश में मर्दों के अब क्यों दिखाई देता है। ये अपने भाई के, अगर सारे मातमी बैठे हैं, ये अपने भाई के हर मातमी को महशर में। यार इख्तियार इमाम हसन पढ़ो यार, हुसैन का मातमी खामोश हो जाए मेरा दिल मानता ही नहीं। ये अपने भाई के हर मातमी को महशर में खुदा की खुल्दे बरी तक रसाई देता है। जो मातमी जन्नत में जाने के लिए बैठा यार जी, बड़ी मेहरबानी। खुदा की खुल्दे बरी तक रसाई देता है। आखिरी शेर में मसाइब पढ़ने लगा हूं। खुदा की खुल्दे बरी तक
रसाई देता है और मेरे रसूल को, अल्लाह जाने आपका अकीदा क्या है, मेरे रसूल को मेराज पर खुदा की जगह। आहा, आपकी क्या बात है, लुत्फ आ गया जनाब, आपके हाथ उठाने की क्या बात है, बहुत शुक्रिया। इमाम ज़माना इतनी लतीफ़ समातू को सलामत रखें। मेरे रसूल को मेराज पर खुदा की जगह, मेरे रसूल को मेराज, ये अपने भाई के हर मातमी को महशर में खुदा की खुल्दे बरी तक रसाई देता है। ये अपने भाई के हर मातमी को महशर में खुदा की खुल्दे बरी तक रसाई देता है और मेरे रसूल को मेराज पर खुदा की जगह बस इस हसन का ही बाबा दिखाई देता है। जी बड़ी मेहरबानी, बस इस हसन का ही बाबा दिखाई देता है। मालिक आपको सलामत रखें। जितने अज़ादार आए बैठे हैं इस मुश्किल दौर में, मैं समझता हूं हसन को उसकी यतीमी का पुरसा देने आए बैठे हैं। शहादत आखिरी जाकिर का हक है, मेरे बाद भाई बयान फरमाएंगे। अज़ादारों में मसाइब पढ़ना चाहता हूँ उन 3 सैयदजादियों का जो कायनात से इतनी जख्मी गई कि उनके जख्मों से आज भी ताज़ा खून जारी है। कितने दर्द वाले मोमन बैठे हैं यार, बड़ी मेहरबानी। सैयद आप सैयद जो हुए आपका हाय करना बनता था। पहली सैयदजादी का तारुफ करवाने लगा हूँ। पहली सैयदजादी वो है जो बाप की शहादत के बाद जितने दिन जिंदा रही रोती रही, रो रो के कहती रही, मुसलमान कब मुझे बाबा का पुरसा देने आएंगे। अजरुको मिनल्लाह, जिसकी हाय बुलंद हो गई। अज़ादारों बताऊं ये सैयदजादी कितनी जख्मी थी। अगला जो जुमला पढ़ने लगा हूं किसी रावी की रिवायत नहीं बल्कि तेरे मेरे इमाम हुसैन रिवायत करते हैं। फरमाते हैं हमारी माँ जब से दरबार से वापिस आई ना, अपना दायां रुखसार हमसे छुपा के रखती थी। हुसैन फरमाते हैं एक दिन मैं माँ के पहलू में सोया हुआ था, आधी रात का वक्त था, मेरी आंख खुली और आंख खुल के जो मंजर देखा मेरी चीख निकल गई। और जिस मंजर पे हुसैन की चीख निकल गई, ये पत्थर दिल नहीं ये नरम दिल मोमिन बैठे हैं, ये हाय ना करें मैं मानते ही नहीं। हुसैन फरमाते हैं मेरी आंख खुली, मेरे माँ के रुखसार से कपड़ा हटा हुआ था। हुसैन फरमाते हैं मैंने क्या देखा, मेरी माँ के रुखसार पे तमाचे का निशान था, मेरी माँ का गाल फटा हुआ। अली की बेटियां आपसे राजी हो यार। दूसरी सैयदजादी फाते शाम भी है जिसको यतीमी का आज पुरसा देने आए हो। अज़ादारों बताऊं अली की आलिया बेटी कितनी जख्मी थी, इतनी जख्मी थी कि जब शाम गरीबा हैमू को आग लगी ना, हमीद रिवायत करता है मैं देख रहा था सैयदा ज़ैनब बार बार हैमे के अंदर जा रही है और अब जो बीबी बाहर आई तो बीबी अकेली नहीं आई। तेरी मातम का जुमला पढ़ने लगा हूं, बीबी अकेली नहीं आई बल्कि बीबी की पुश्त पे सैयद सज्जाद थे। अज़ादारों सज्जाद को बचता हुआ देख के शिमर की फौज के 70 सिपाही नेज़े लेके सज्जाद को मारने आ गए। गोखी वालों ये लाइन नेज़े मारते जाते, बीबी कभी दायां पहलू बदलती कभी बायां पहलू बदलती, रो रो के कहती हुसैन अकबर की लाश उठाना आसान है, जिंदा सज्जाद उठाना बड़ा मुश्किल है, और मैं सज्जाद को बचा के अजरुको मिनल्लाह। अली की बेटियां इन मातमियों पर राजी हो। अज़ादारों तीसरी सैयदजादी 3.5 साल की सकीना है। अज़ादारों रिवायत के लफ्ज कहते हैं शाम गरीबा दौड़ती भी जा रही थी, अपने बाप का मैयत तलाश कर रही थी। चलती चलती बीबी करीब पहुंची कि घुड़सवार पास से गुजरा। बीबी ने कहा या शेख हल रही था अभी, तूने कहीं मेरा बाबा देखा है? उसने कहा मन अंत या सभी, ए बच्ची तू कौन है? फरमाया अना सकीना बिनतल हुसैन। अज़ादारों उसे पता चला, छलांग मार के उतरा, दायां हाथ उठाया, इस रंग में जवाब दिया। 4 साल की बच्ची जमीन पर गिर गई, दोनों हाथ फरमाया ओ शेख मार तो लिया है, अब बता मेरा बाबा कहाँ? सलवात पावाज़े बुलंद। अब आप